Very good afternoon, students. Now we comes on a numerical methods. It's our first lectures on numerical methods. Now first we see where we use that numerical method. That numerical method is a repetitive in a nature and it gives a more accurate solution for any given equation. Suppose that may be algebraic equation, maybe linear equations, maybe differential equations. So it's a very accurate process to get the solution, and in earlier day that method is very useful technically in a computer programming. So it's useful for you all in a engineering field. So first we see what is a numerical method. So here is a algebraic polynomial I have defined, that is Pn of x, that should be in this form: a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 and so on up to an, where that a0 that is not equals to 0, that means it is in the form of constant. It's called as algebraic polynomial. It is of nth degree. Higher order term here is x raised to n, so it is nth degree polynomial. And if you put that polynomial Pn of x is equals to 0, अगर ऐसे polynomial equate किया हमने 0 से, it's called as a algebraic equation. Now second, that is a transcendental equation. Now that transcendent equation, how we define that Pn of x is equals to 0, that is if it is in the form of above equation. But what is the changes here? It involves other types of function. If that type of equations involves other functions such as the exponential function, that means there is a e raised to x के फॉर्म में आ रहा है उस इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक है मतलब साइन है, कॉस है, टैन है, ऐसे फॉर्म में इक्वेशंस में टर्म आ रही है, लॉगरिदमिक है, एक्सेट्रा, then it is called as a transcendental equation. And to get the solution of that above equation, ऐसे फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन रहता है, मे बी algebraic or maybe transcendental equation. And now there are two methods how to get the solution of that type of equation. Now these two methods are nothing but first is a Newton-Raphson method and second is called as a regular false or a false position method. अब ये दो मेथड है, अल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आपके रहे तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, दैट इज अगेन इटरेटिव मतलब एक स्टेप आगे आगे हम करते जाते हैं जब तक हमको सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं. तो अब हाउ टू गेट द सॉल्यूशंस बाय यूजिंग दैट न्यूटन रैप्सन मेथड. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम पहली मेथड देखेंगे, दैट इज न्यूटन रैप्सन मेथड. If you consider here the function f of x, that f of x is equals to 0 be a given equation. Suppose आपका equation f of x के फॉर्म में है, that is equal to 0, that is our given equation है और हमें उसका solution निकालना है by using that Newton-Raphson method. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें take a approximate initial root x0. हमें सबसे पहले initial root वहाँ पे consider करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, that is we denote it by x0. Now find two successive numbers a and b such that f of a and f of b are of opposite sign. हमें दो ऐसे नंबर चूज करने a and b such that f of a, if you put that x is equals to a in a given function and if you put x is equals to b in a given function, we get a f of a and f of b and these are of opposite sign के फॉर्म में वो रहेंगे. So then second step, apply the Newton-Raphson method. हमें फिर न्यूटन रैप्सन मेथड उसको अप्लाई करनी है. न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन. तो ये प्रोसेस हमें कंटिन्यूसली करती जानी है जब तक एक फाइनाइट हमें फाइनल आंसर नहीं मिल जाता. और यहाँ पे एन जो वैल्यू होता है दैट इज फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या रहती है इस प्रॉब्लम में, जब हम न्यूटन रैप्सन मेथड से करते हैं तो पहले तो दो नंबर हमें चूज़ करना पड़ता है. हम स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करते हैं कोई भी नंबर. इनिशियली वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 देन 1 देन 2 एंड इफ यू सी दैट फॉर टू सक्सेसिव नंबर्स देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज अ पॉजिटिव एंड सेकंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज अ नेगेटिव, देन पॉसिबिलिटी इज दैट रूट ऑफ दैट फंक्शन इज लाइज इन बिटवीन दैट टू सक्सेसिव नंबर्स. तो ये जो है ये बेटर आपको प्रॉब्लम जब हम लोग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. पहले तो सिंपली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, दैट इज एक्स रेस टू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन. ये एफ डैश क्या डिनोट करता है, दैट डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ
xn, मतलब इनिशियली अगर आप n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x0 होगा, x0 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश ऑफ x0, और वो वैल्यू किसकी देगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें मिलेगी। इसी तरह से हम सेकंड x2 निकालेंगे, देन x3 निकालेंगे एंड सो ऑन। ओके, सो इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर्मूला फॉर न्यूटन-रैप्सन मेथड। अब हम आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स। Now students, we comes on that Newton-Raphson method problem. Find the roots of the following equation NR. NR means that is a Newton-Raphson method. If f of x is equals to, यहाँ पे f of x there, x raised to the power 4 minus x minus 9 equals to 0, and we have to find its solution correct up to 3 decimal places. तो वो कैसे निकालना है अब आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो जो f of x आपको दिया, we have to get its derivative, that is f dash of x, क्योंकि फॉर्मूला के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा हमारा 4x³ माइनस 1, ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1, ये भी हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इन दिस वे वी गेट इक्वेशन 1 एंड 2। अब आ जाते हैं हम रूट्स की तरफ। अब रूट्स कैसे निकालेंगे, इनिशियली हम एक वैल्यू पुट करते जाएंगे। इनिशियली फॉर हमें इनिशियल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 से। फॉर x इज इक्वल टू 0 अगर हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे यूजिंग इन 1, तो देखो क्या होगा, यूजिंग इन 1 में पुट कर रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 9। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एफ ऑफ 1 देखेंगे। अब जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस ये भी 1 हो जाएगा, ये माइनस 9 हो गया। अब यहाँ पे 1 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 1 माइनस 1, ये हो गया 0, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा आगे ना 9 रहेगा। उसके बाद आते हैं हम 2 पे। फॉर x इज इक्वल्स टू अगर हम 2 लेंगे, फॉर x इज इक्वल्स टू सपोज हमने 2 लिया, x इज इक्वल्स टू 2 लिया, तो हमारा एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एफ ऑफ 2 मतलब इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस यहाँ पे 2 माइनस 9। अब इसका करते हैं हम कैलकुलेशंस क्या आएगा, तो अब 2 रेज़ टू 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इट बिकम अ 16, 16 माइनस 2 माइनस 9। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो ये तो हो गया 16 माइनस 2 14, 14 माइनस 9 ये हो गया 5, सो ये हो गया 5। अब उसके बाद आते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 3 के लिए। अब x इज इक्वल्स टू 3 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 माइनस 9, क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 इट इज़ 81, 81 माइनस 3 माइनस 9। सो न्यूमेरिकली देखो अब यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेंगी उसकी। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो एक नहीं, सॉरी आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, 3 तक यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें 1 और 2 ही देखना है। क्यों हम 1 और 2 पे रुकेंगे, कि मैंने क्यों बताया था कि 2 ऐसे हम पॉइंट चूज़ करेंगे ए और बी सच दैट एफ ऑफ ए एक की वैल्यू पॉजिटिव आएंगे और एक की वैल्यू निगेटिव आएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 लिया था, x इज इक्वल्स टू अगर हमने यहाँ पे 1 कंसिडर किया, x इज इक्वल्स टू 1, तो एफ ऑफ 1 आ गया हमारा माइनस 9। सेकंड हमने लिया x इज इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया +5, मतलब एक की वैल्यू हमारी निगेटिव आ रही है और एक की वैल्यू रिस्पेक्टिव दोनों नंबर की, एक है 1 और एक है 2, तो 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और 1 की वैल्यू निगेटिव। दैट मीन्स रूट इज लाइज इन बिटवीन 1 एंड 2, मतलब रूट इज लाइज इन बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड 2। अब वो इन बिटवीन 1 एंड 2 हमारा रूट मिलेंगे ही हमको। तो ये ध्यान में रखना कि जब अपन पॉइंट्स लेते हैं तो पॉइंट्स लेते वक्त जो फंक्शन की वैल्यू आएंगी कि एक पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो सक्सेसिव आगे का पॉइंट से उसके लिए पॉजिटिव है, या पहली पॉजिटिव है तो दूसरी निगेटिव है। अब अगर अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से टर्म हम लेंगे। अब जब हमने देखा कि फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो है यहाँ पे 5 और यहाँ पे है -9। अब अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो 5 क्या है, न्यूमेरिकली 9 से लेस है। सो एज f of 2 is numerically less, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकली लेस रहेंगी वही हम पहला रूट कंसिडर करेंगे। वी कंसिडर इट एज अ x0 as f of 2 is a numerically less and therefore we consider here x0 as a 2।
देयरफॉर वी कंसिडर x0 एज अ 2। क्यों हमने 2 किया, क्योंकि एफ ऑफ 1 जब हमने लिया तो वो निगेटिव उसकी एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई, और एफ ऑफ 2 लिया तो वो पॉजिटिव आई। दैट मीन्स रूट इज लाइज इन बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 के बीच में तो रहने वाला है, पर हम इनिशियली x0 क्या कंसिडर करेंगे, तो x0 वही हम पॉइंट कंसिडर करेंगे कि जिसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट के लिए न्यूमेरिकली ले सकते हैं। हमें पता है कि 2 के लिए 5 आई है फंक्शन की वैल्यू, और वो न्यूमेरिकली ले सकते, जबकि यहाँ पे -9 है, पर हमें पता है कि 9 न्यूमेरिकली 5 से बड़ा है। तो इनिशियली वी कंसिडर है x0 इज इक्वल्स टू 2। अब हमने x0 इज इक्वल्स टू 2 ले लिया है, तो x0 हमारे पास फॉर्मूला है कि एज, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। वी कैन राइट, yes, we have just written the formula, that is x raised to n plus 1 equals to xn minus f of xn upon f dash of xn। अब इनिशियली हम n इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, देयरफॉर हम पहला रूट निकालेंगे x1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x0 होगा, फॉर n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 0 लिया हमने, x0 माइनस यहाँ पे f ऑफ x0, उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है f डैश ऑफ x0। ओके, सो 1 बाय 1 ये सब वैल्यूज हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, x0 क्या है हमारे लिए, हमारा x0 है 2, x0 इज इक्वल्स टू 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस f डैश ऑफ, सो इन दिस वे। अब एफ ऑफ 2 क्या होगा हमारा, एफ ऑफ 2 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 5, एफ डैश ऑफ 2, एफ डैश ऑफ एक्स है हमारे पास 4x³ माइनस 1, तो यहाँ पे हम लगे तो एफ डैश ऑफ 2 निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ 2 क्या होगा हमारा, दैट इज 4, यहाँ पे 2³ माइनस 1 हो जाएगा। अब 2³ सो 4 इंटू 2³ मीन्स क्या होगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 31। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, x1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एफ ऑफ 2 ऑलरेडी यहाँ पे हमने निकाली थी 5 अपॉन 31। अब जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इसका न्यूमेरिकली आंसर आएगा जो आप कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करो, मैं आपकी वेट करती हूँ। व्हाट इज योर वैल्यू हियर, कैलकुलेट इट एंड टेल मी। It should be 1.8387। कितनी आनी चाहिए वो, 1.8387। योर वैल्यू शुड बी इन दिस फॉर्म। अब ये तो आ गई हमारी x1 की वैल्यू, दैट इज 1.8387। अब हमें इसी तरह x2 निकालना है। x2 अगेन द सेम फॉर्मूला, सपोज दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 में क्या पुट करेंगे हम, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, x2 निकालना है फॉर, और ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। अब हमें पता है कि x2 क्या होगा, यूजिंग इक्वेशन 3 में हमें ये निकालना है x2। तो यहाँ पे अगर x2 रहा, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रही, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू हम लेंगे 1, तो 1 + 1 ये होगा 2, सो इट बिकम x2 यहाँ पे क्या रहेगा x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x। तो ऐसे फॉर्म में आएगा हमारा आगे की टर्म। ओके, तो हमें 1 बाय 1 वहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। एक बार अच्छे से देख लो सभी स्टेप्स, को ध्यान में आ जाए। अब आगे आ जाएंगे हम x2 की तरफ। x2 इज इक्वल्स टू x1, क्या है हमारा x1, व्हाट वी हैव कैलकुलेट, दैट इज 1.8387, ये हो गया हमारा। Then f of x1 is again f of 1.8387, then f dash of, that is f dash of 1.8387। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना है 1 बाय 1। f of 1, f dash of 1, f of 1 मतलब जो हमारा फंक्शन है f of x, क्या था हमारा फंक्शन, f of x इक्वेशन 1 में हमने लिया था, f of x इज इक्वल्स टू दैट इज x रेज़ टू द पावर 4 माइनस x माइनस 9 था। मतलब यहाँ पे आपको x की जगह 1.8387 पुट करनी है, और f डैश ऑफ x वहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज f डैश ऑफ x क्या था हमारा 4x³ माइनस 1। तो यहाँ पे भी आपको
x की जगह 1.8387 यहाँ पे पुट करना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दैट वैल्यूज. ओके, सो कैलकुलेट करो वन बाय वन, वहाँ पे पुट करो और यहाँ पे पुट करने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट x2. सो इजीली यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर. तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का यूज करना है. यहाँ पे क्या होगा, जब आप f ऑफ 1.8387 लेंगे तो यहाँ पे देखो दैट इज f ऑफ 1.8387 डालेंगे आप x की जगह. यहाँ पे भी 1.8387, ये तो इजी है आप सभी के लिए. यहाँ पे भी 1.8387, यहाँ पे -9. यू हैव टू कैलकुलेट दैट. उसके बाद f डैश ऑफ x आप लेंगे तो f डैश ऑफ x की वैल्यू है आपके लिए 4x³ -1. तो यहाँ पे आप अगर डालेंगे f डैश ऑफ 1.8387 f डैश, दैट इज 4 into 1.8387 रेस्ट टू द पावर 3 -1. ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन. अब ये दोनों वैल्यू जो निकलेंगी यू हैव टू पुट इन दैट इक्वेशन. सो यू कैलकुलेट द x2. x2 निकालो आप सब लोग और बताओ मुझे क्या आता है. व्हाट शुड बी योर x2? सो योर x2 शुड बी 1.818939. एक बार देख लो 1.8139. So your x2 should be in this form, that is x2 is equals to 1.8139. अब जो पहला रूट था हमारा वो था 1.8387, सेकंड रूट आ गया 1.8139. अब आगे निकालना है. अब हमें आगे निकालना है नेक्स्ट x3. अब x3 कैसे निकालेंगे? x3 अगेन यूजिंग इक्वेशन 3. सो यूजिंग 3, अब यूजिंग 3 x3 निकालेंगे तो यहाँ पे आगे की प्रीवियस टर्म xn+1 है ना, तो यहाँ पे x3 लिया तो यहाँ पे x2 होगा. x2 माइनस f ऑफ x2 होगा और यहाँ पे f डैश ऑफ x2. ओके, सो वन बाय वन यू हैव टू पुट ऑल दैट वैल्यूज हियर. सो अगेन x2 इज, व्हाट इज योर x2 हियर? x2 इज ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 1.8139 माइनस यहाँ पे f ऑफ x2. f ऑफ x2 मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है f ऑफ 1.8139. उसके बाद f डैश ऑफ 1.8139. कैलकुलेट करो ये सभी वैल्यूज और बताओ मुझे आपका x3 क्या आ रहा है. ओके, now after calculating x3 when you put f of 1.8139, मतलब इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है x की 1.8139. यहाँ पे भी जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पुट करनी है. f डैश ऑफ x में आप x की वैल्यू 1.8139 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आपको मिलेगा. और फाइनली कैलकुलेशंस के बाद ये वैल्यू आती है दैट x3 इज इक्वल्स टू 1.8133. अब अगर x2 और x3 थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, x2 और ये है आपका x3, सी दैट केयरफुली. तो क्या दिख रहा है आपको? हियर इज अ 1.8139, यहाँ पे 1.8133. मतलब जो 3 डेसिमल प्लेसेस है आफ्टर दैट डेसिमल प्लेसेस द 3 वहाँ पे क्या है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये वैल्यू सेम है. मतलब यहाँ पे भी 813 प्लेसेस जो टर्म्स है 3 प्लेसेस पे डिजिटल, मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3 प्लेसेस है उन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है. सेम आ रही है यहाँ पे करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज अ देयरफॉर अप्रोक्सीमेट रूट इज 1.8133 which is correct up to कितने डेसिमल प्लेसेस तक है? अप टू 3, which is correct up to 3 डेसिमल प्लेसेस, which is correct up to 3 डेसिमल प्लेसेस. ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये दोनों भी वैल्यू x2 x3 रिपीट हो रही है, सेम आ रही है. सो दैट इज अप्रोक्सीमेट रूट 1.8133 which is correct up to 3 डेसिमल प्लेसेस. और जो प्रॉब्लम था हमारा उसमें भी हमें यही पूछा था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3 प्लेसेस रहते हैं वो सेम होने चाहिए प्रीवियस रूट के और जो रूट हमारा आया है उस रूट के. तो वो रूट हो जाता है आपका
approximate correct root up to 3 decimal places. Okay, so hope you understand that all the problems. एक बार देख लो इसको, अच्छे से समझ लो. Now students, we comes on a second problems of that Newton-Raphson method. प्रॉब्लम है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. अब रूट देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है दैट इज एक्स लॉग एक्स टू द बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0. ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हो गया क्योंकि यहाँ पे लॉग के टर्म है. करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. यहाँ पे हमें यूज करना है यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड. यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, न्यूटन-रैप्सन मेथड. अब सबसे पहले तो हमें देखने की ऐसे कौन से दो पॉइंट्स है कि जिन पॉइंट्स के बीच रूट ऑफ दैट इक्वेशन इज लाइज. तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे. सपोज दैट इज योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0. सेकंड हम इसका निकाल लेंगे डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स. तो अब डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम. हाउ टू राइट दैट log x टू द बेस 10 दैट इज log x अपॉन log 10. अब 10 के यहाँ पे बेस में रहेगा e माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0. ओके, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स. इसको सिंप्लीफाई किया. अब निकालते हैं हम एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव. तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म एज इट इज रहेंगे. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लेंगे बिकॉज देयर आर टू टर्म्स ऑफ एक्स. एक सिंगल एक्स है और एक है लॉग ऑफ एक्स. तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू दैट टर्म लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई. सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, ए एक्स एज इट इज रहेगा और यहाँ पे log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x. और यहाँ पे ये जो टर्म है 1 अपॉन लॉग ऑफ 10 टू द बेस e एज इट इज रहेंगी. और ये टर्म कांस्टेंट होने की वजह से ये हो जाएंगी 0. ओके, सो यहाँ पे एक्स एक्स गेट तो कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे रहेगा log ऑफ x अपॉन log 10 टू द बेस e. तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log ऑफ, या फिर एज इट इज रखा भी आपने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गए. तो ये हो गया log ऑफ x टू द बेस 10. यहाँ पे ये कैंसिल होने की वजह से 1 अपॉन log ऑफ 10 द बेस e. ओके, सो इस तरह से आपको मिल जाएगा एफ डैश ऑफ x. एक बार अच्छे से देख लो. इस टर्म को हमने अगेन लिख लिया log x, सॉरी ऐसे लिखेंगे log x टू द बेस 10. ओके, ये प्रॉपर्टी लॉगरिथम की आपको पता है कि क्या कहती है, सभी को पता है कि log a टू द बेस b रहा तो इसको लिखते हैं हम log a बाय log b. तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई. ओके, सो दैट इज योर एफ डैश ऑफ एक्स. देख लो इसको अच्छे से एक बार. अब हम आते हैं आगे. वन बाय वन हम रूट निकालेंगे. इनिशियली सपोज हम इनिशियली पहला रूट अगर हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो देखो ओरली हम देखते हैं यहाँ पे अगर 0 पुट किया तो 0 इंटू समथिंग ये 0 हो जाएगा. मतलब यहाँ पे रहेगा माइनस 1.2. तो x एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1.2 आ रही. सेकंड हम सपोज हम x इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे. तो x इज इक्वल टू 1 के लिए देखा तो ये 1 हो जाएगा. पर log 1 हमें पता है अगेन है 0. मतलब हमारा एफ ऑफ 1 भी क्या आ रहा है माइनस 1.2. मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के लिए सेम आ रही है दैट इज माइनस 1.2. अब आगे अगर हम देखेंगे x इज इक्वल टू 2 के लिए तो वो हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 2. तो आप एफ ऑफ 2 के लिए देखो क्या आएंगे, तो कैलकुलेट करना है आप लोगों को. ये तो आप कैलकुलेटर से करो. सो 2 इंटू log 2 टू द बेस 10 माइनस 1.2. चलो निकालो. अब ये आपके लिए है, करो इसको. तो वैल्यू जो है आपकी वो आती है माइनस 0.5929. देख लो एक बार अच्छे से आती है कि नहीं. तो ये वैल्यू सेकंड
x3 अगर निकालोगे तो x3 दैट इज योर f ऑफ 3, सॉरी x इज इक्वल्स टू 3 हम लेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 दैट इज f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू log 3 टू द बेस 10 माइनस 1.2। अब इसको कैलकुलेट करो क्या आती है, तो आपकी वैल्यू देखो। सो अगर यहाँ पे आपने देखा तो f ऑफ 2 आ रहा है आपका माइनस 0.5929, मतलब ये निगेटिव है, इट इज अ लेस देन 0, और ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। मतलब 2 के लिए 3 के लिए एक वैल्यू निगेटिव आ रही है और एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब दो सक्सेसिव जो पॉइंट्स है हमारे 2 और 3, मतलब हमारा रूट लाई होगा इन बिटवीन 2 एंड 3। तो ये बात ध्यान में रखना। अब रहा सवाल कि x0 किसको कंसिडर करेंगे, 2 को कंसिडर करेंगे कि 3 को। बट अगर आपने न्यूमेरिकली वैल्यू देखी तो न्यूमेरिकली f ऑफ 2 की वैल्यू ये है 0.5929 और न्यूमेरिकली f ऑफ 3 की वैल्यू है 0.2313। सो व्हाट वी से, न्यूमेरिकली f ऑफ 3 इज न्यूमेरिकली लेस। f ऑफ 3 क्या रहता है, न्यूमेरिकली लेस रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे x0 क्या कंसीडर करेंगे, x0 इज इक्वल्स टू 3 कंसीडर करेंगे। ओके, सो x0 3 कंसीडर करेंगे। सो बाय द न्यूटन, बाय द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला है हमारे लिए, अब वहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा रूट कैलकुलेट करेंगे। तो x1 हमें, हमारा फॉर्मूला क्या है, xn+1 इज इक्वल्स टू, एक बार लगे तो और लिख लेते हैं आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। ओके, देख लो एक बार अच्छे से। सो अब हम x1 निकालेंगे इनिशियली फॉर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करके इन दैट गिवन इक्वेशन। सपोज इसका हम नंबर दे देंगे, सपोज दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो x1 इज इक्वल्स टू होगा हमारा x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0। तो यहाँ पे हमें x1 इज इक्वल्स टू 3 लेंगे हम, x0 तो 3 माइनस f ऑफ 3 अपॉन f डैश ऑफ 3। सो f ऑफ 3 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था 0.2313। तो f डैश ऑफ 3 क्या होगा हमारा, f डैश ऑफ 3 दैट इज अ डेरिवेटिव। तो f डैश ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी हमारे, f डैश ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी एज f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, डैश ऑफ x क्या निकाला था हमने, दैट इज अ log of x to the base 10 plus 1 upon log 10 to the base e, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, log of x to the base 10 plus log 10 to the base e raised to -1, अगर ये टर्म न्यूमरेटर में चली गई। तो ये है आपका f डैश ऑफ x। सो f डैश ऑफ 3 निकलो आप, f डैश ऑफ 3 दैट इज अ log of 3 to the base 10 प्लस यहाँ पे log 10 to the base e raised to -1। ये आपको कैलकुलेट करना है एंड देन यू गेट f डैश ऑफ 3। व्हाट्स योर डैश ऑफ 3? ये कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से और बताओ मुझे क्या आते हैं इसका आंसर। ये होगा देन log ऑफ 3 टू द बेस 10 प्लस 0.4343 इसकी वैल्यू आएंगी। सो फाइनली वी हैव टू पुट ऑल दैट वैल्यूज हियर। सो x1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस f ऑफ 3 की जो वैल्यू है आपके पास, f ऑफ 3 इज 0.2313, देन दैट एज इट इज वी पुट हियर log ऑफ 3 टू द बेस 10 प्लस 0.4343। देख लो एक बार अच्छे से, और कैलकुलेट करो ये, देन यू गेट द x1। सो स्टूडेंट्स हमें तो x1 यहाँ पे मिलता है, x1 इज इक्वल्स टू 2.7462 आफ्टर कैलकुलेटिंग। अब ये x1 है हमारा, अब हमें आगे x2 निकलना है। x2 के लिए फॉर्मूला x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1। सो x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देन यहाँ पे f ऑफ x1, यहाँ पे f डैश ऑफ x1। और अब आपके पास f ऑफ x भी है, f डैश ऑफ x भी है। उस f ऑफ x और f डैश ऑफ x में आप x की जगह ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। यू हैव टू कैलकुलेट दैट
ये आप कैलकुलेटर से अच्छे से निकालते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को इजीली मिल ही जाता है। उसके बाद आप x2 कैलकुलेट करेंगे। x2 है हमारा 2.7406। एक बात हमेशा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करते वक्त, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करते वक्त, यू ऑलवेज कीप द कैलकुलेटर, इट्स अ यू कैन यूज इट, इट इज़ अलाउ इन द एग्जाम। उसके बाद x2 निकालने के बाद हम आगे x3 निकालेंगे। x3 के लिए भी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यहाँ पे x2 होगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डैश ऑफ x2। अगेन यू हैव टू पुट x2 f of x2 f dash of x2, you calculate all that and finally you get x3 is equals to 2.7406। अब अगर आप x3 की वैल्यू और x2 की वैल्यू देखेंगे तो बोथ हैव द सेम वैल्यू, 3 डेसिमल तक नहीं, 4 डेसिमल तक भी इनकी वैल्यू कैसी है, सेम है आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। सो व्हाट वी से, देयरफॉर अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू कितने प्लेसेस तक, करेक्ट अप टू 3 decimal places, correct up to 3 decimal places is, that is nothing but a 2.7406, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है, मतलब ये हो गया आपका करेक्ट रूट। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, दैट इज अवर न्यूटन रैप्सन मेथड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उसका वो ध्यान में रखो, कैसे स्टेप्स निकालने वो ध्यान में रखो, रूट्स कैसे निकालते हैं, वो सभी चीज़ें अब आपको यहाँ पे समझ में आई गई होंगी। एक बार अच्छे से उसको रिवाइज करो। और ये प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने आपके लिए दिया प्रैक्टिस के लिए, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, उसका अगेन आपको रूट निकालना है, अगेन करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आंसर भी मैंने यू हैव टू प्रोवाइडेड इट किस मेथड से, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, सो दैट इज फॉर योर होमवर्क। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट पार्ट। इस पूरे पार्ट्स के एक बार अच्छे से रिवीजन करो और आपके नोटबुक में लिख लो। सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।